السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائستہ ضیاء غریب کی آواز کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ اپنے ماؤں بہنوں بچیوں کے ساتھ یہاں پہ اس طرح کے مسئلے مسائل کے ساتھ آتے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے اپیل کر سکیں اور لوگ جو ہے وہ ہمارے ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے راستے آسان کرے اور ان کی مشکلات آسان۔ آج ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن موجود ہیں اور میں بہت سارے انٹرویوز کرتی ہوں اور چاہے وہ غریب کی آواز بلند کرنے کے لیے ہوں یا کسی سیاسی حوالے سے سماجی حوالے سے بہت سارے یہاں پہ انٹرویوز ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں ان کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اتنی سٹرگل کر رہی ہیں کہ آپ لوگ خود سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک غریب عورت، ایک مجبور عورت اور جن کے ہسبینڈ کو کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی اور کبھی وہ سیل مین کی جاب کہیں پہ کر رہے ہیں تو کبھی کیسے، اور کبھی ایسے حالات جیسے آج کل ان کے حالات ہیں کہ ان کو کہیں پہ بھی کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کسی طرح کی مزدوری نہیں مل رہی، لیکن اس خاتون کا ذکر کرتی چلوں کہ ان خاتون نے اپنی محنت نہیں چھوڑی اور مسلسل بہت ساری چیزوں کو لے کے وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کرنے کی، اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ باقی ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم بہن، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی، آج آپ ہماری ایک ایسی خاتون جو لوگوں کے لیے ایک پیغام لے کے آئی ہیں کہ محنت کر رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں کہ آپ کے مسئلے مسائل ایسے چل رہے ہیں، وہ آپ ذرا ہمیں بتائیں پلیز۔ بس میں چاہتی ہوں میرے بچے پڑھ لیں اچھے طریقے سے، وہ انہیں بہت شوق ہے، میں خود پڑھی ہوئی نہیں ہوں لیکن میں چاہتی ہوں میرے بچے پڑھیں، لیکن میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ پلیز میری ہیلپ کریں کچھ، میرے بچے پڑھ لیں، میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، میں اپنی محنت مزدوری کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے بھی میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، جیسا کہ ابھی آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کی کوشش جی، کر رہی ہیں، اس کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ اس کے لیے میں ایک اسکول میں جاتی ہوں، کینٹین میں نے چھوٹی سی لی ہوئی ہے، ادھر یہ بچوں کی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، رول سموسے چھوٹے سے گھر سے بنا کے لے کے جاتی ہوں، پھر یہی آس پاس جو دکانیں ہیں ادھر سے کام آ جاتا ہے وہ بھی کرتی ہوں میں۔ جو مثلاً وہ دکانوں سے مثلاً آپ جیسے مجھے بتا رہی تھی وہ سارا ذکر کریں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے کہاں کہاں سے 100 50 جمع کر کے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینے کے لیے یہ ساری کوشش کر رہی ہیں، وہ ذرا ہمیں بتائیں۔ میں بس کوشش یہ کرتی ہوں میرے بچے پڑھ جائیں، میں یہ جو گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ادھر سے پائے وغیرہ جو صاف کرنے کے ہوتے ہیں وہ لے کر آتی ہوں، وہ 4 پائے کو 200 روپے دیتے ہیں، وہ صاف کر یعنی وہ 4 پائے جو ہیں وہ گوشت کی دکان سے لا کے آپ ان کو صاف کرتی ہیں اور وہ آپ کو 200 روپیہ دیتے ہیں، 200 روپیہ دہاڑی آپ وہاں سے کما رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کینٹین لگاتی ہیں، ہاں جی، اسکول سے آپ نے تھوڑا سا جگہ لی ہوئی ہے تاکہ وہ آپ بچوں کے لیے اچھی سی چیزیں گھر بنا کے سموسا رول اور چاٹ لے کے جاتی ہوں، سموسے ہوتے ہیں، آلو کی ٹکیاں ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، بھی یہ میں خود سے گھر سے بنا کے لے کے جاتی ہوں۔ پھر میں اتنی دور پیدل جاتی ہوں، وہاں سے میں رول سموسوں کی پٹی لے کے آتی ہوں، ڈرائیور تک جاؤ تو 100 روپے کرایہ لگتا ہے، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ کوئی آنٹیاں محلے میں کپڑے دلوانے ہوں، کمبل دلوانے ہوں، وہ میں انہیں دھو کے دیتی ہوں، وہ بھی 500 400 روپے دیتی ہیں دھونے کے، لیکن میں بہت مجبور ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے بجلی گیس کے بل جمع نہیں ہوئے ہیں، بس سمجھ نہیں آتی، اپنے اللہ سے دعا ہے پلیز میری مدد کریں۔ اس وقت جو بچے آپ پڑھا رہی ہیں میں سن کے آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ بچے لے کے اچھے اسکولوں میں اچھی تعلیم دینا چاہ رہی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ میرے بچوں کی فیس جمع نہیں ہوئی، میں چاہتی ہوں بس وہ اچھے بنے تاکہ آج اچھا پڑھیں، کل انشاءاللہ اپنے پاکستان کا نام روشن کریں کہ کسی ماں نے تربیت کی اپنے بچے کی، اچھے پڑھے ہیں۔ بس اللہ پاک سب بچوں کو کامیاب کرے، اللہ پاک ان کے صدقے سے میرے بچوں کو بھی کامیاب کرے۔
जी, नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इस वक़्त माशाल्लाह से इनका बेटा यूनिवर्सिटी तक चला गया और ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए परेशान है और ये फ़ीस चूँकि कभी किन से माँगती हैं उधार की सूरत में और कहीं पे ये पाई लेके साफ़ करके और वहाँ से 2-200 रुपए कमा के जमा करके और कहीं पे ये बुज़ुर्ग आंटियों के कंबल और कपड़े धो के 400-500 रुपया लेके और उनको जमा करके और फिर ये समोसा और रोल वगैरह बना के किसी स्कूल में जाके बच्चों के लिए कैंटीन लगा कर वहाँ से कमा कर और ये सारी सिलसिले जो हैं वो घर भी चलाती हैं और बच्चों की तालीम का यहाँ पे ज़िक्र ख़ुसूसी करूँगी कि उनकी फ़ीस के लिए ये परेशान रहती हैं और ये फ़ीस जमा करके जाके सेमेस्टर चूँकि वहाँ पे काफ़ी फ़ीस होती है और यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके गई हैं एक बच्चे को और दूसरा जो है वो डिप्लोमा कर रहा है। एक बच्चा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो है वो जा चुका है। ये सारी चीज़ें पॉज़िटिव अगर आप लें तो हमें चाहिए कि हम ऐसी ख़ातून को सलूट भी पेश करें और उनकी मदद भी करें ताकि आज ये अपने बच्चों को पढ़ा के इस काबिल कर सकें कि जो इन्होंने मुश्किल वक़्त काटा वो उनके लिए आसानी पैदा हो और वही बच्चे दूसरों के लिए ये काम करें और उनकी मदद करें और उनको इसी तरीके से लोगों को तालीम दें ताकि हमारे मुआशरे में भी बेहतरी आ सके, तालीमी लिहाज से भी बेहतरी आ सके और तरबियत के हवाले से इस खातून की जिस तरह की बातें थीं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ऐसी खातून को आप जो है वो सपोर्ट करें ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। तो और आप बच्चों की फ़ीस वैसे कैसे दे रही हैं ये बताएँ? बस जिस तरह भी उधार कभी इनकी फूफो से ले लिए, कभी अंकल से ले लिए, कभी किसी से ले लिए, कभी दुकान वाले से रेंट उठा लिया, कभी आस-पास से कर लेती हूँ। इस तरह करके भी जमा कर लेती हूँ। फिर ज़ाहिर बात है उनका कर्ज़ा तो चढ़ा हुआ है ना, कर्ज़ा भी उतारना समझ नहीं आती, कर्ज़ा उतारे कि बच्चों की फ़ीस से जमा कराएँ। सही। घर तो में मेरे कपड़े धोने की मशीन नहीं है, आप यकीन करें मेरी मशीन थी वो खराब, मैं अपने हाथ से सारे बच्चों के कपड़े धोती हूँ। सुबह उधर जाती हूँ, रात को मैं 2-2 3-3 बजे तक मैं घर के काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ हाथ से। ताकि लेकिन घर के काम भी हो सकें, बाहर से बाहर आप का दिन में तो बाहर का होता है, रात में घर का काम करती हूँ सारा मैं। दिन यानी आप कभी इधर कभी उधर कभी भटक उधर रही होती जी, हैं मैं और 1 इसी तरह मिनट मेहनत भी कर रही मैं होती हैं। नहीं बैठती हूँ, आप यकीन करेंगे मैं रात को घर के होते हैं और दिन में बाहर के होते हैं। मेरी शादी को इतना अरसा हो गया, 22 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन मेरे बच्चे हुए हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत कमज़ोर थे, कोई इतनी ख़ास उनकी जॉब नहीं थी, यही सेल्समैन की क्या जॉब होती है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ मैं। मैं खुद अनपढ़ हूँ लेकिन मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे बच्चे पढ़ें, कुछ बने, मुस्तकबिल उनका अच्छा हो। लेकिन मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन मैं इतनी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपने बच्चों को स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दिया है इस मेहनत से। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, लोगों के काम करती हूँ, घरों में जाके पापड़ वगैरह ये बना के स्कूलों में कैंटीनों में लेकर जाती हूँ। जो मुझसे होता है मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं इतनी फ़ीस नहीं जमा कर सकती। आधी फ़ीस जमा होती है, यूनिवर्सिटियों की फ़ीस, सेमेस्टरों की फ़ीस कितनी होती है। लेकिन मेरा दूसरा बेटा पफट कॉलेज में पढ़ता है, उसकी 2-2 महीने की फ़ीस जमा हुई है। मैं एक बच्चे की फ़ीस जमा कराऊँ, दूसरे की कराऊँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, हो के आपके सामने आई हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उनका मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ। आज मैं खुद नहीं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ें, उन्हें बहुत शौक़ है पढ़ने का। मैं लोगों की साइयों की दुकानों पे औरत हो के खुद जाती हूँ, उनसे पाए लेके आती हूँ, वो साफ करके दे के आती हूँ, एक 200 रुपए के लिए कि मेरे बच्चों के लिए पैसे जमा हो जाए। प्लीज़ मैंने मैडम से भी यही कहा, मैं किसी से मांग नहीं रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया अपनी मेहनत पे, अपने बल पे। इंशाल्लाह आगे भी यही होगा, लेकिन प्लीज़ कुछ मेरी हेल्प करें, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं इतने काम करती हूँ, मैं समोसों की पट्टी लेने जाती हूँ बेल नंबर 2 पे कि मेरे 100 रुपए बच जाएँ। मैं भी चाहती हूँ ना कि मैं रिक्शे में जाऊँ, मैं थकूँ ना यहाँ पे। 40 रुपए भी मैं बचाती हूँ कि नहीं ये 40 रुपए भी मेरे बच जाए, मेरे बच्चों के काम आ जाए, मेरे बच्चों के लिए कुछ हो जाए, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ मैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ बस।
मैं बस इस्तात रखने वाले लोगों से अपील करूँगी कि हमारी इस बहन की मदद करें ताकि फ़ीसिस में ये इनके लिए आसानी हो सके और ये अपने बच्चों के लिए जो परेशानी लेके कभी इधर भटक रही हैं, कभी उधर भटक रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि वो मेहनत कर रही हैं। लेकिन ये है कि ये परेशान भी हैं और इनकी फ़ीसिस का जो है मसला वो किसी तरीके से हल हो सके। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखें ये चीज़ें हैं जो कि ये लेके जाती हैं कैंटीन पे और वहाँ पे कैंटीन, क्योंकि ये अभी कैंटीन से ही वापस आ रही हैं और उसी सिलसिले में फिर ये मेरे पास आई हैं और ये चीज़ें वहाँ पे बनाती हैं और बना के फिर सेल करके फिर घर वापस आती हैं और फिर ये जाके लोगों के घरों में काम करती हैं, फिर जाके ये पाए साफ़ करती हैं, फिर जाके ये रोल पट्टियाँ लाती हैं और इस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम दे के उनका मुस्तकबिल बेहतर करना चाह रही हैं। तो मैं अपने इस्तात रखने वाले वाक़ई के उन लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हमारी इस बहन का साथ दें और इनमें इनकी मदद करें ताकि इनके लिए आसानी पैदा हो सके और इनकी बच्चे अगर आज किसी तरह कामयाब हो जाते हैं इस तरीके से, तो यकीनन कल वो बच्चे भी और बच्चों को आगे लेके आएंगे और इस तरीके से हमारा तालीमी निज़ाम भी बेहतर होगा और इंसानियत के नाते भी हम एक दूसरे की मदद करने के काबिल होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।